Good evening, all. We will start in some 2 to 3 minutes more. Some few more waiting for if any few more participants join. Then we will start around in 2 to 3 minutes more.
Okay, good evening all. Today, to start with, like my presentation would be focused on concepts of hedging, but like overall some basic, since hedging is a part of a trading strategy, so some two more trading strategies I would be discussing, and then my presentation's focus will move towards hedging. So like major trading strategies, if we major trading strategies are speculation, hedging, and arbitrage. इन स्पेकुलेशन इट इज लाइक जैसे आप कोई भी कमोडिटी को फिजिकल में रखते हैं और जस्ट यू होल्ड ऑन द कमोडिटी एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स यू एक्सपेक्ट कि 1 मंथ या 2 मंथ्स में आपका you will get your desired price levels and then you will sell off your stocks. It could be also like आप इंट्राडे स्पेकुलेशन कर रहे हो फ्यूचर्स पे या एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपने मतलब just for 10 days you are keeping your position and then you are squaring up your position by booking your whatever profits or losses, so that comes under speculation. And then and when we talk of arbitrage, in arbitrage it is like uh, you try to encash the difference between the two different markets. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि जयपुर में फॉर एग्जांपल चने का प्राइस 5,000 चल रहा है और वहीं पे दिल्ली में चने का प्राइस 5,100 है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फ्रेट जो लगेगा, मतलब मेरे को जयपुर से दिल्ली पहुंचाने का खर्चा जो लगेगा, दैट वुड बी अराउंड 50 रुपीज पर क्विंटल. That's around 5,050 rupees quintal would be your landed price at Delhi. So but with the markets in Delhi are trading at suppose 5,100, so the 50 rupees का जो आप profit कमा रहे हो using the difference between the two different markets, actually that's called arbitrage. You're utilizing whatever margins, be it small or large, whatever margins you are getting using the difference between the two different markets. It could also be spot or futures also. जैसे कि एग्जांपल लूं कि अगर आज अगर जो नियर मंथ फ्यूचर है अपना ये अगस्त फ्यूचर्स, उसमें अगर चने का प्राइस एग्जांपल 5,100 चल रहा है और स्पॉट में आपको लेके जो भी आपके एक्सपेंसेस सब जोड़ के यू आर गेटिंग 5,080 समथिंग, सो यू आर गेटिंग सम 20 रुपीज मार्जिन, सो आप फ्यूचर्स पे उसको लगा दोगे. तो इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. एंड हेजिंग इज व्हाट लाइक आप दो अलग मार्केट्स में, इन टू डिफरेंट मार्केट्स यू मेक अपोजिट पोजीशंस. लाइक अगर आपने स्पॉट में फिजिकल मार्केट में आपने खरीदा है, यू हैव परचेज्ड इट, सो यू विल मेक योर शॉर्ट पोजीशन, मतलब सेलिंग पोजीशन आप फ्यूचर्स पे बना देंगे. जस्ट इट इज टू रिड्यूस द रिस्क एक्चुअली.
कि मान लीजिए अगर फिजिकल मार्केट आपके उसमें मतलब व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फिजिकल मार्केट डिडंट गेट गो दैट वे, but since you have made an opposite position in futures market, so the loss which you make in spot or physical market will be offset in your futures market. So overall आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, बट आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, रिस्क कंट्रोल हो जाएगा इसमें. So it could be even in two different markets also you can make, you can, so this is how what hedging is about. So like we have a question here, just participants, anyone can answer in the chat box, like what is the prime objective of arbitrator? Like I had explained arbitrage strategy just before. So there are four options: to manage spot market price risk, to earn riskless profit by exploiting price differentials across markets or exchanges, and to transfer price risk, and none of these. So like anyone in the chat box, or you can unmute yourself and answer what should be the answer of this question. It's just to make the session interactive. Yeah, we have got an answer: to earn riskless profit by exploiting price differential across markets or exchanges. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि दो डिफरेंट मार्केट्स हैं आपके, और उसमें जो प्राइस डिफरेंस को आप इनकैश करके आप प्रॉफिट या लॉस जो भी है यू विल, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट या जो भी मार्जिन डिफरेंस है उसको आप इनकैश करके आप अपना प्रॉफिट अर्न करोगे. दैट्स व्हाट आर्बिट्रेजिंग इज अबाउट, एंड दैट्स व्हाट एन आर्बिट्रेजर डज. Okay, so now means a slide, one slide I have kept on speculation. So in speculation क्या है कि अगर जैसे for example आपने long position, like you have purchased something, so you do it when आपका market में view रहता है कि prices would be going up. So like 5,000 में मैंने खरीदा, you expect कि 2-3 months में price will move towards 5,500. So with that intention you are keeping, and you make a long position in this speculation strategy. And if you expect के अंडरलाइन जो है आपका जो भी कमोडिटी है उसकी प्राइसेस नीचे चले जाएंगी, तो आप मतलब आगे के डेट में आप उसमें शॉर्ट पोजीशन आप बना लोगे. जैसे कि मतलब एक एग्जांपल फ्यूचर्स पे आप एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे अभी अभी सोयाबीन के जैसे अक्टूबर वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखेंगे, तो इट्स लाइक अराउंड अक्टूबर नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड 6500 के आसपास 7,000 के बीच में मतलब चल रहे हैं जैसे. और वी एक्सपेक्ट कि जब क्रॉप आएगी तो prices will be somewhere in the range of 5,000. just an example it is. So आप क्या करेंगे आज के डेट में, आप उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना के रख लेंगे, और कोई आपकी साइड में कोई और कहीं पे पोजीशन नहीं है, जस्ट यू हैव मेड अ शॉर्ट पोजीशन बिकॉज यू एक्सपेक्ट के अंडरलाइन की जो प्राइस है दैट विल मूव डाउन. और जैसे स्प्रेड ट्रेडिंग में आपको एग्जैक्ट उस कमोडिटी का प्राइस व्यू पता नहीं होता, बट आपको पता है कि ये जो दो डिफरेंट कमोडिटीज हैं इनके बीच में क्या प्राइस डिफरेंस रहता है, और उसके बेसिस पे आप वो करते हैं. जैसे इट कुड बी सपोज कोई भी टू ऑयल्स को पकड़ लीजिए, तो उन दो ऑयल का आपको पता है कि कैसे क्या प्राइस डिफरेंस रहता है, और अभी फ्यूचर में आगे आने जो भी वॉट एवर पॉलिसीज कैन हैपन, सो कैसे द प्राइसेस विल इम्पैक्ट. सो बेस्ड ऑन दैट यू विल मेक योर पोजिशंस एंड ऑल इन दैट. सो इट्स लाइक आप कोई भी चीज को अगर आप हेज नहीं कर रहे हो, आप प्राइस रिस्क करने के लिए यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सो दैट्स एक्चुअली अ स्पेकुलेशन. So like price risk, if I say effect on someone who wants to sell, तो मतलब if prices go up it's profit for him, and if the prices go down तो जितना भी नीचे जाएगा वो उसका loss होगा, and vice versa if someone wants to buy something. So like what, so to avoid this price risk, जो manufacturers what they do is like मतलब वो पहले ही रॉ मटेरियल खरीद के रख लेंगे. जैसे अराइवल्स आती है, व्हेन अराइवल्स एंड ऑल हैपन, so that time they would be procuring the material and keeping it in their warehouses and all, so that like जब भी आगे prices and all बढ़ेगा तो उसके हिसाब से they will do whatever their trading strategies they are doing. So but what it does is आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाता है उससे, और जो आपका कैपिटल है वो आपका वहीं पे ब्लॉक हो जाता है कि आपने उतना खरीदने के लिए आपका वो कैपिटल ब्लॉक हो जाता है. तो बट उसके लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या, अगर मैं आज नहीं रखता हूँ तो मान लीजिए जैसे अभी
ऑयल कॉम्प्लेक्स वगैरह में प्राइसेस बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं आज के डेट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं रखा भी नहीं है, तो मैं क्या है कि जो पास ऑन द प्राइस रिस्क टू द कस्टमर्स, तो जो भी फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस होगा उसको मैं उस हिसाब से वेरी करता रहूंगा, एंड इट इज लाइक पासिंग ऑन द प्राइस रिस्क टू द कस्टमर्स। और मतलब और एल्स आई एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कोई भी फिक्स्ड प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी है विद कमोडिटी सप्लायर्स के, से मैं आई एंटर इनटू सम कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके आई बी बाइंग और सेलिंग एट दिस प्राइस। और थर्ड ऑप्शन इज hedge in the futures market. So my means now the second part of my presentation would be fully focused on this hedging and all. So now I move towards hedging. तो अगर जैसे बेसिक देखें तो इसमें अगर हम ये पिक्चर भी देखें तो हेज जो शब्द आया है अपने इवन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड ऑल में, इसमें आप देखेंगे कि जो अपर पिक्चर है उसमें द मतलब कोई भी मतलब ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है ऊपर वाले हाउस को, जैसे कोई भी स्ट्रे एनिमल्स या फॉर जस्ट एन एग्जांपल, और नीचे वाले उसमें आप देखेंगे तो ये देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो दिस इज व्हाट हेजिंग इज अबाउट। जैसा कि आप मतलब इसमें पिक्टोरियली देख पा रहे हैं कि इट इज अबाउट मिनिमाइजिंग द प्राइस, मतलब ट्रेडिंग के वर्ल्ड में इट इज जस्ट अबाउट मिनिमाइजिंग द योर प्राइस रिस्क एंड ऑल, जो भी बिकॉज ऑफ दोज वोलेटाइल मार्केट्स एंड ऑल जो रहते हैं। तो what is hedging precisely? It is just practice of taking a position in one market to offset and balance against the risk adopted by assuming a position in a contrary or opposing market. Just मैंने बताया कि कोई भी दो मार्केट हैं उसमें आप अपोजिट पोजीशंस बनाएंगे, तो अगर एक में अगर आपको लॉस होता है तो दूसरा क्योंकि आपने अपोजिट पोजीशन बनाया है, सो यू विल get profit in that. I'll be telling you with examples in coming slides. So hedgers are basically those market participants who want to transfer their risk. It could be any producers or consumers. So based on whatever they are, so they will make their hedging strategy accordingly. So जो producer hedgers होते हैं, they actually want to transfer the risk. मतलब अगर prices कल को if it could decline by the time their produce is ready for sale accordingly, so that's the reason they go for hedging their risk. And consumer hedgers are like मतलब मेरे को फ्यूचर में खरीदना है कोई भी कमोडिटी है वो, और प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इट्स अ रिस्क फॉर मी, सो आई विल मेक माई पोजीशन अकॉर्डिंगली। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हेजिंग मेनली, एक तो लॉन्ग हेज रहता है और एक शॉर्ट हेज रहता है। तो लॉन्ग हेज में क्या रहता है कि जैसे जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं विच आर हैविंग सेलिंग पोजीशन इन अंडरलाइंग फॉर अ फ्यूचर डेट, और जो शॉर्ट हेज में रहता है वो वाले पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जिनके पास में स्टॉक है, और या फिर दे एक्सपेक्ट टू हैव स्टॉक्स। तो मतलब लॉन्ग हेज कौन करते हैं, मतलब जिनको रिस्क है कि प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे तो वो वहां पे लॉन्ग हेज करते हैं। सिमिलरली अपोजिट हो जाता है शॉर्ट हेज के लिए कि दोज हु एक्सपेक्ट द प्राइसेस शुड गो डाउन इन फ्यूचर दे वुड बी गोइंग फॉर शॉर्ट हेज। एंड सो व्हाट दे प्रिसाइसली डू इज लाइक लॉन्ग हेजर जो भी रहेगा वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन ले लेगा। मतलब जैसे मतलब फ्यूचर्स के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं अगस्त सितंबर जो भी वॉट एवर इट कुड बी, यू विल टेक दैट बाइंग पोजीशन एंड फिक्स इज बाइंग प्राइस फॉर अ फ्यूचर डेट। और जो आपका शॉर्ट हेजर है ही विल मेक वाइस वर्सा द अपोजिट पोजीशन। सो इधर मतलब लाइक इट्स गेटिंग बिट थ्योरेटिकली, जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल से समझाऊंगा तो इट वुड बी मोर इलस्ट्रेट, मतलब आप बेहतर समझ पाएंगे। तो अभी जस्ट एक बेसिक समझ लीजिए कि लॉन्ग हेज क्या करता है कि कोई भी अपवर्ड मूवमेंट इन प्राइजेस से प्रोटेक्ट करता है, और जो भी शॉर्ट हेज है वो आपके डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए प्राइसेस में प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ये एक एग्जांपल है, कोई भी एक कंपनी है जैसे इट्स एन एक्सपोर्टर ऑफ गुआरगम फॉर एग्जांपल, एंड इट हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपोर्ट गुआरगम एट 6500 जून 2020 में, जस्ट लाइक जून 20, मतलब जैसे कि इलस्ट्रेशन की तरह लेना है इसको। और अभी मान लीजिए करंट फ्यूचर प्राइस जो चल रहा है जून 2020 का वो 6400 है, एक एग्जांपल। तो नाउ व्हाट दे डू इज लॉन्ग हेज है तो दे विल बाय द जून फ्यूचर्स, suppose they buy the June futures at 6400। so अब इसमें हम दो सिनेरियो समझते हैं, if prices goes up and if prices goes down। so since he had
bought his since his futures buying price was 6400, so अगर मान लीजिए कि प्राइसेस अप जाती हैं और हम ये इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रही हैं तो जो फाइनल जब हमारा सेटलमेंट जो भी होगा उस टाइम पे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में परफेक्ट कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो जो फ्यूचर है वो 6400 से 7000 गया और जो स्पॉट प्राइस है वो भी आपका 7000 चला गया। तो जो और सॉरी, तो जो आपका जैसे सेलिंग प्राइस है 6500, बिकॉज ये एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपोर्ट एट 6500, सो उसका जो प्रॉफिट लॉस इन फ्यूचर्स होगा इट वुड बी 600, बिकॉज फ्यूचर उसने खरीदा था 6400 में, अभी प्राइस है 7000, क्योंकि ऑफसेट करेगा जब तो उसको 600 का इधर प्रॉफिट होगा। बट स्पॉट में ही हैड एग्रीड अपॉन टू सेल एट 6500, बट प्राइसेस जा चुके हैं 7000, so it's a loss of around 500 to him। so overall उसका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, इट्स एक्चुअली 100 का ही उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ इसमें। सिमिलरली अगर हम वाइस वर्सा सिनेरियो भी पकड़ लेते हैं, तो जैसे अगर प्राइजेस नीचे जाते हैं 6400 से, फ्यूचर्स प्राइस और स्पॉट प्राइस कन्वर्ज कर जाते हैं जो आपका फाइनल सेटलमेंट डे होता है बोथ एट 6000, तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस तो आपका 6500 है ही। तो जो स्पॉट में आपको इतने का बेनिफिट मिल गया, क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए सेटलमेंट के दिन आपका जो स्पॉट प्राइस है वो 6000 है और आपने यू आर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इट एट 6500, तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो स्पॉट में 500, बट यू हैव अ लॉस इन फ्यूचर्स बिकॉज 6400 में आपने बाई किया था, बट यू आर एक्चुअली स्क्वायरिंग ऑफ एट 6000 precisely selling it, so आपका इधर -400, so again it's overall प्रॉफिट ऑफ 100 इन बोथ द सिनेरियोज। तो इससे मतलब ये रहता है कि हेजिंग में आप कोई भी पोजीशन मतलब आप अगर प्राइजेस किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, अगर आपने पोजीशन सही से बना रखी है तो आपका जो लॉस से आप बच जाएंगे इसमें, और आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा, अगर आप उसको शॉर्ट में कहना है तो। वही एक एग्जांपल है शॉर्ट हेज का। जैसे शॉर्ट हेज क्या होता है, कोई भी आपने जैसे स्टॉक खरीद के रख लिया, प्रोसेसर हो या फिर कोई आप ऐसे ट्रेडर भी हो, जैसे स्टॉक करके रख लिया और आप एक्सपेक्ट करते हो मतलब जो भी प्राइसेस नीचे न जाए उसके लिए आप हेजिंग करके चल रहे हो। तो जैसे मैं किधर एग्जांपल दे रहा हूँ कि करंट फ्यूचर प्राइस फॉर जून 6400 पकड़ के चल रहा हूँ और आपने 6300 में कोई चीज खरीद के रख ली है, तो जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स पड़ा 6300। अगेन मतलब ये सिनेरियो समझ लेते हैं इसमें, जैसे कि अगर प्राइजेस ऊपर जाते हैं तो मान लीजिए फ्यूचर्स जो आपने सेल किया था वो तो 6400 था, प्राइजेस ऊपर चले गए, परफेक्ट कन्वर्जेंस हम एज्यूम करके चल रहे हैं ऑन फाइनल सेटलमेंट डे दैट इज 7000। तो इसमें आपका फ्यूचर्स में आपका ये 600 का लॉस हो जा रहा है, क्योंकि 6400 में आपका सेलिंग था और बट आज की डेट में आप स्क्वायर ऑफ करेंगे 7000 में आप बाय बैक करेंगे तो 600 का इधर लॉस है। और इधर स्पॉट में क्योंकि आपने 6300 में खरीदा था और आप उसको स्क्वायर ऑफ करोगे 7000 में, मतलब 6300 में खरीदा 7000 में बेच रहे हो मतलब बेसिकली, तो 700 का इधर आपको प्रॉफिट है। तो सिंस लॉस इन फ्यूचर्स इज ऑफ 600 एंड स्पॉट का जो प्रॉफिट या लॉस है दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 700, सो ओवरऑल आपका प्रॉफिट 100 है। तो इट्स जस्ट एन अनदर एग्जांपल, उसमें वाइस वर्सा वाला केस है। तो सिमिलरली आपने देखा कि चाहे लॉन्ग हेज किया या शॉर्ट हेज किया, बेस्ड ऑन आपको जो भी पोजीशन थी, जो भी आपका रोल था, उस केस में एक एक्सपोर्टर था और इस केस में एक प्रोसेसर था। तो इसमें क्या है कि अगर हम पोजीशन को फ्लैट रख देते, एक बार को मैं एज्यूम कर ले रहा हूं क्योंकि प्राइसेस 6400 से 7000 गई है, मैं एक एज्यूम कर लेता हूं, तो आपको प्रॉफिट हो सकता था 600 रुपए का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पर आपको उतने का लॉस भी हो सकता था। तो इसलिए देखा जाए तो हेजिंग में क्या है कि हम इस इंटेंशन से नहीं करते, कोई जो प्लेयर्स होते हैं एक्सपोर्टर्स से प्रोसेसर्स, दे डोंट डू विद दैट इंटेंशन दैट दे हैव टू make money, churn money, or they have to make profit. It is just to minimize your losses, minimize your risk. So that is it all about. So in all those scenarios we have seen,
जो आपका प्रॉफिट मार्जिन, ये जो भी आपको मिला वो बहुत कम मिला है, अराउंड 100 रुपीज का, जबकि प्राइस मूवमेंट इज अराउंड ऑफ 600 रुपीज। सो लाइक बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ हेजिंग क्या है कि एक तो इट स्ट्रेचेस योर मार्केटिंग पीरियड। जैसे मतलब फार्मर है वो मतलब अपने प्राइस को पहले ही लॉक इन कर सकता है, इवन बिफोर इज प्रोड्यूस इज रेडी टू हार्वेस्ट। और हेजिंग जो है आपका इन्वेंट्री वैल्यू को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब जैसे कुछ अभी मैंने एग्जांपल दिया, प्रोसेसर वगैरह हो या फिर आप कोई भी एक्सपोर्टर वगैरह हो। एंड हेजिंग परमिट्स योर फॉरवर्ड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मतलब a manufacturer, like, it determines the cost of raw materials by buying a futures contract, so it, in short, it translates that price to a price for the finished products। तो मतलब आप मतलब आगे की भी जो प्राइसिंग है वो डिटरमाइन हो जाती है इफ द प्लेयर्स आर एक्चुअली हेजिंग ऑन ऑन सम प्लेटफॉर्म। बट स्टिल देर आर टू लिमिटेशंस ऑफ हेजिंग। देर आर, एक बेसिस रिस्क है और एक रोल ओवर है, जिसको भी मैं आगे की स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगा, लाइक बेसिस बेसिस रिस्क है क्या। So it's one more note, like hedging can only minimize the risk but cannot fully eliminate it। जैसे ये इसमें अभी रिस्क में कैसे एक एक थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है, बट आपका रिस्क तो मिनिमाइज है, बट स्टिल देयर इज अ स्लाइट रिस्क ऑफ बेसिस रिस्क। तो अभी मतलब हेजिंग थोड़ा सा और मतलब सेशन को इंटरेक्टिव करने के लिए, मतलब देयर विल बी कपल ऑफ क्वेश्चंस नाउ। सो लाइक क्वेश्चन है, hedging to futures contracts, it increases risk of price if prices fall, or eliminates profit maximization potential, it increases risk of loss if prices rise, or ensures profit maximization potential। तो लाइक इसमें आप आंसर कर सकते हो। हेलो एनीवन, आप मतलब चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, अनम्यूट भी करके बता सकते हो, लाइक मैंने अभी जो प्रेजेंटेशन करी है इट वाज ऑल अबाउट, बेसिकली आई वाज कवरिंग हेजिंग ओनली। तो मतलब आपका क्या अंडरस्टैंडिंग रहा कि मतलब इसमें क्या ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें। एनीवन विद योर आंसर्स लाइक ऑन हेजिंग, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाह रहे, या फिर आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। एनीवन। हेमंत कुमार जी ने आंसर किया है, इट इंश्योर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पोटेंशियल। मैं इधर कहना चाहूंगा कि हेजिंग जो करते हैं हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं करते हैं, ये एक्चुअली एलिमिनेट कर देता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पोटेंशियल। अगर देखा जाए मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकली मतलब एक वर्ड इसमें आ गया, एलिमिनेट एक्चुअली इसमें आपका रिस्क मिनिमाइज करता है, और रिस्क मिनिमाइजेशन के साथ में भी जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पोटेंशियल था उसको भी एलिमिनेट कर देता है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि 6400 से लेके 7000 तक प्राइजेस मूव किए, यानी 700 का प्राइस मूवमेंट हुआ। तो अगर आप पोजीशन को खुली छोड़ देते, आप उसको हेज नहीं करते, तो 700 का आपको प्रॉफिट हो सकता था। पर मान लीजिए बाजार 7000 न जाके 6000 चले जाते एक एग्जाम्पल, तो आपको नुकसान भी 400 का हो जाता अगर मार्केट, क्योंकि पोजीशन आपकी खुली है। तो हेजिंग में क्या हुआ कि आपको दोनों ही केस में मार्केट जिस भी डायरेक्शन में गया, आपको एक 100 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। तो actually potential was your 700 rupees was your potential to make profit, though it could have been 400 700 potential could have been of loss also, but here what it happened was
you made a profit of just 100 rupees. So in short, it was minimizing your risk and even it is eliminating somewhere, कहीं ना कहीं eliminate कर रहा है आपके profit maximization potential को. So एक और क्वेश्चन है इधर, which among the given options is the objective of a hedger? Like now it would be very simple because मतलब पिछला में मैंने और एक्सप्लेन कर ही दिया सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा इधर आंसर. Tanya Negi have answered B option. Yeah, to manage spot market price risk. Yeah, that is the correct answer actually. Anyone जो भी मतलब मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स लिए थे एक्सपोर्टर्स के, प्रोसेसर्स के, व्हाट दे आर डूइंग इज कि स्पॉट मार्केट एट द एंड किस भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो उस प्राइस रिस्क को मैनेज करने के लिए ही एक अपोजिट पोजीशन किसी दूसरे फ्यूचर मार्केट के किसी अलग मार्केट पे बना रहे हैं. तो इट इज योर मैनेजिंग योर spot market price risk. So this is the correct answer, B option. So moving forward, now I'd be discussing one limitation of hedging, that is basis risk. So basis is what it is, just a difference between your futures price and the spot price. Like to memorize it, it's just spot minus future. Like means just to calculate instantaneously, just subtract future price from the spot price. It is spot minus future. So suppose if the difference is a positive number, the basis is said to be over in our trading terminology, that the basis is said to be over, and if difference comes out to be a negative number, the basis is said to be under. So generally ये terminologies use करते हैं जो भी hedging वगैरह करते हैं to describe the nature of their trade. So again I am with a very basic and simple question, like what is basis in derivatives contract. So just we can, just to make interactive, anyone can answer this. Yeah, I've got an answer. It's for A option, like difference. It's a difference between your spot price and futures price, which is known as the basis. And one more, like when will you call basis to be negative out of the given options? Like when near month futures is lower than spot price, or your spot price is higher than the futures price, or your futures price is equal to your spot price, or futures price is higher than the spot price. Yeah, I have received D option. That's correct. Actually, futures price is higher than spot price. That time your basis would be negative. Basis going your formula, that is basis equal to spot minus future. So basis risk कैसे होता है? जैसे it's defined as the risk that a futures price will move differently from that of its underlying asset. अब इसमें जैसे क्या होता है कि स्पॉट माइनस फ्यूचर, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, आज की डेट में अगर स्पॉट 5000 है और फ्यूचर्स 5100 है, कल को मान लीजिए स्पॉट चला जाता है 5200 और फ्यूचर्स भी 5200, मतलब 5100 से 5200 गया, यानी स्पॉट 200 रुपये ऊपर गया, फ्यूचर 100 रुपये ऊपर गया. तो इस केस में इट्स लाइक आपका बेसिस जीरो हो गया, जो कि कुछ समय पहले -100 था. तो सिंस योर बेसिस का मूवमेंट हो रहा है, तो इट इज लाइक जैसे प्राइस रिस्क भी होता है कि 300 400 का मूवमेंट में आपको 400 का प्रॉफिट भी मिल सकता है, 400 का लॉस भी मिल सकता है. सिमिलरली
बेसिस रिस्क में भी ये एक जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर, और आपने दोनों जगह पोजीशंस बना रखी है एज अ हेजर, तो वो भी आपका एक तरह से रिस्क हो जाता है। जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस इज व्हेन द स्पॉट प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस मोर और डिक्रीजेस लेस देन द करस्पॉन्डिंग फ्यूचर्स प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे भी एग्जांपल दिया मैंने कि स्पॉट प्राइस 5,000 से 5,200 गया और फ्यूचर्स 5,100 से 5,200 ही गया, तो स्पॉट प्राइस ज्यादा ऊपर चला गया तो -100 से जीरो हो गया, तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस। वीकनिंग ऑफ बेसिस वुड बी जस्ट वाइस वर्सा ऑफ दैट। और स्ट्रेंथनिंग बेसिस increases your gains for your short futures position, and it reduces the gains for the long futures position, and weakening के केस में आप उसको एक वाइस वर्सा समझ समझ के चल सकते हैं। अगर वही है थ्योरेटिकली, इसमें हमेशा डाउट्स रह जाते हैं कुछ, तो लाइक वी कैन बाय इलस्ट्रेशन वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। तो जैसे एक एग्जांपल इधर मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जिस दिन आपने हेज किया जैसे अपना पोजीशन, तो इफ सपोज स्पॉट प्राइस इज 6,500 और फ्यूचर्स प्राइस 6,500 था, और आप एक शॉर्ट हेजर हो, एक एग्जांपल, तो आप स्पॉट खरीदोगे, फ्यूचर्स को आप सेल करोगे, तो जब मान लीजिए 30 दिन बाद में दोनों प्राइजेस ऊपर गए, स्पॉट प्राइस 6,500 से 7,000 चला गया, यानी 500 ऊपर गया, और फ्यूचर्स प्राइस 200 ही ऊपर गया, तो इस केस में क्योंकि स्पॉट का मूवमेंट ज्यादा आया कंपेयर टू फ्यूचर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बेसिस को हम कहेंगे बेसिस इज स्ट्रेंथन फ्रॉम 0 to 300। सो हाउ इट इम्पेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल, तो अब जैसे सपोज समवन, मैंने फिजिकल में आज माल खरीद लिया 6,500 में, कोई भी कमोडिटी खरीदी, और उसी दिन मैंने फ्यूचर सेल कर दिया 6,500 पे। अब जब T+30 डेज, यानी जो T+30 डेज पे हम आई वॉन्ट टू स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन, तो उस दिन जो मैंने फ्यूचर्स 6,500 पे बेच रखा था, वो आई विल बाय बैक एट 6,700। सो क्योंकि बिकॉज यू सोल्ड एट 6,500 एंड यू आर बाइंग इट एट 6,700, तो आपका जो ओवरऑल यू आर एट अ लॉस ऑफ 200 रुपीज। सो दैट इज योर लॉस, दैट्स -200। और वहीं पे क्योंकि आपने स्पॉट में 6,500 में खरीदा था, और ये जो आपने स्पॉट सेल किया 7,000 पे, तो इधर आपको 500 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलता है। दैट्स व्हाट योर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस इज 300 रुपीज। ये मतलब इसको हमने बाइफरकेट करके समझ लिया कि एक एक इंडिविजुअली, और हम इसको बेसिस चार्ट पे भी हम देख के समझ सकते हैं कि 0 से 300 का उसको प्रॉफिट ही होगा इतने का, अगर बेसिस उसका स्ट्रेंथन है। इफ इज शॉर्ट हेजर, तो शॉर्ट हेजर को प्रॉफिट होगा वेन एवर द बेसिस स्ट्रेंथन्स। अगर लॉन्ग हेजर होता तो उसको इतने का ही लॉस हो जाता 300 रुपीज का, क्योंकि अब आप इस सारे सिनेरियोज में आप अपोजिट पोजीशन पकड़ के चल सकते हो, तो इट वुड बी अ लॉस ऑफ 300 रुपीज फॉर अ लॉन्ग हेजर। और एक सिनेरियो अगर हम समझ लें कि बेसिस इज नॉट मूव, तो जैसे स्पॉट खरीदा 6,500 पे, और हमने पोजीशन बनाई थी 6,500 पे सेल की, अब दोनों इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड में मूवमेंट हो गया दोनों का, मतलब ये स्पॉट भी 7,000 पहुंच गया, फ्यूचर्स भी 7,000 पहुंच गया, तो प्रॉफिट और लॉस तो आप एक तरफ से ऑफसेट ही हो गया ना, -500 का इधर फ्यूचर्स में लॉस होता है, स्पॉट में आपको प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आपका निल हो जाता है। So if basis doesn't move, then it's neither profit neither loss. So again, you are safe in a scenario के आपका इधर risk minimized है still। तो अभी जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस में मैंने बताया कि शॉर्ट हेजर को फायदा होगा और लॉन्ग हेजर को नुकसान होगा। पर अब मैंने एग्जाम्पल ऑफ वीकनिंग बेसिस में भी मैंने शॉर्ट हेजर का ही एग्जाम्पल लिया है कि इसमें लॉस हो रहा है, जस्ट टू शो लाइक हाउ ही इज गेटिंग दैट लॉस। सो सपोज 6,500 और 6,500 दोनों स्पॉट फीचर सेम है, उसने अपनी पोजीशंस बना ली, हेज कर लिया। आफ्टर 30 डेज आपका बेसिस वीकेंड होके 200 -200 पे हो गया, लाइक स्पॉट मूव्ड ओनली 500 एंड फीचर्स वेंट अप अराउंड 700 रुपीज अप। तो अभी जैसे इधर एक सिनेरियो समझ लें, इसने खरीदा था टी डे पे 6,500, और इसने सेल स्पॉट किया T+30 डेज पे 7,000 पे, -700 का लॉस। इधर इसने फ्यूचर सेल किया था 6,500 पे,
और इसने स्क्वायर ऑफ किया 7200 पे। आई गेस sorry, just a minute, I want to pause actually some. Yeah, suppose if he buys spot on T day that is at 6500 and if he is selling on T plus 30 days at 7000, तो जो उसको इधर प्रॉफिट हुआ 500 का, एंड हियर सपोज ऑन इन फ्यूचर्स ही सेलिंग एट 6500 एंड ही स्क्वायरिंग ऑफ ऑन T plus 30 days at 7200, तो उसको लॉस हो गया -700 का, बिकॉज ही सोल्ड एट 6500 एंड ही इज बाइंग टू स्क्वायर ऑफ हिज पोजीशन एट 7200, सो इसका लॉस है इधर -700 का। जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है इधर इट्स -200। एंड द सेम जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि बेसिस हैज नॉट मूव्ड, सो इट वुड बी ओवरऑल प्रॉफिट लॉस वुड बी जीरो ओनली। लाइक एंड इन दिस केस इफ बेसिस वीकन्स, सो लॉन्ग हेजर अगर होता इस जगह पे एट द सेम प्राइस लेवल, सो ही वुड हैव गेन्ड ओवरऑल प्रॉफिट लॉस उसको पर क्विंटल इट वुड हैव बीन 200 रुपीज। So our basis takeaways are, जैसे whenever the basis strengthens, it's a profit for short hedger and it's a loss for a long hedger. Similarly, if a basis weakens, it's a profit for long hedger and a loss for short hedger. So इसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर जैसे बेसिस मूवमेंट अगर हो गया तो जो आपने हेज कर रखा है तो उसमें लॉस होगा जरूर, बट अगर आप पोजीशन को खुली रखें एक एग्जांपल, तो जो आपका नुकसान 500 मतलब एक एग्जांपल 700 तक हो सकता था, वो लॉस आपका घट के सिर्फ 200 250 मतलब अराउंड 200 पे आ गया, जैसे कि मैंने एक सिनेरियो एक एग्जांपल लिया, और अगर आपने नहीं हेज किया होता तो 700 का लॉस हो सकता था। तो दैट इज व्हाट, सो बेसिस रिस्क इज basically it's less than your price risk, and practically it's actually unrealistic that basis risk goes greater than your price risk. That's why if, or else you the full that hedging concept itself will go haywire. So that's what, like, one can hedge the price risk, but there is unfortunately no tool to uh, hedge your basis risk actually. तो जस्ट एक ये एग्जांपल है, ये मतलब एक हिस्टोरिकल प्राइसेस थी अपनी गुआर की, तो अगर आप देखेंगे जैसे इसमें अगर मैं मूवमेंट देखूं तो लोएस्ट प्राइस 3500 तक गया है और हाईएस्ट प्राइस 6500 तक गया है। तो जो ये एक्चुअली में जो ये रेंज है, ये एक्चुअली 3000 तक का रेंज है। बट आप वहीं पे ये बेसिस रिस्क बेसिस को अगर कंपेयर करूं, मैं एक एग्जांपल बीकानेर लोकेशन का बेसिस लिया है जहां पे बीकानेर की स्पॉट प्राइसेस माइनस फ्यूचर प्राइसेस हमने किए हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो जो लोएस्ट है इट्स समवेयर, अगर देखा जाए तो इट्स -150, और अगर मैं एट मैक्स पकड़ लूँ जो मेजोरिटी रहा है 150 तक रहा है। तो जो ये रेंज है आपकी बेसिस रिस्क की, इट्स जस्ट 300, लाइक -150 से 150 तक का। तो ऑब्वियसली देखो, यू कैन डेफिनेटली अर्न सम प्रॉफिट, बट इट्स अल्टीमेटली योर एम इज टू मिनिमाइज योर प्राइस रिस्क। सो आप अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल है इसमें, वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे इसमें आपका जो प्रॉफिट का जो पोटेंशियल है। बट या डेफिनेटली योर रिस्क विल बी मिनिमाइज। अगर इसमें देखो तो 3000 का आपको प्राइस रिस्क है इसमें, अगर मैं अराउंड इसमें 3 इयर्स तक के प्राइजेस हैं एक अप्रोक्सीमेटली, और वहीं पे अगर बेसिस का देख लूं तो फॉर दिस मच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टिल यू हैव अ रिस्क ऑफ जस्ट 300 रुपीज। ये थोड़ा सा इधर इसमें 500 आ रहा है बिकॉज इन्होंने एक्सट्रीम्स पकड़ लिया है 300 और -200, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम में देखूँ तो 150 और -1 पॉजिटिव 150 रहा है। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। Anyone having any questions, they're free to ask. They can unmute and they can even put their questions in their chat box. Any concept or anything which I should repeat or their doubt, like
एनी क्वेश्चंस, एनी कंसेप्ट जिसको मतलब मुझे रिपीट करना चाहिए, कहीं पे डाउट रह गया है, कहीं पे कंफ्यूजन है, लाइक आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने इधर से अनम्यूट ऑल वाला ऑप्शन कर दिया है, एनीवन कैन अनम्यूट देमसेल्फ, एंड आप यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। Good evening, sir. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. May I know who is this? Sir, Tanya. Okay, yeah. So I have a basic doubt, like difference between arbitrage and hedging. This I understood that the basic is a perspective how they look at hedging is mostly for risk management. So, but I am confused in a place where hedging also works in two different markets, though they have two different opposite position. Whereas arbitrage also works in two different markets. So, how is that working? Like both are working in two different markets as spot and the future markets, and second is their place difference also. हाँ, देखो इसमें लाइक बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे दैट आर्बिट्रेज, यू आर जस्ट arbitrage is first of all very short term opportunities you get. Actually, suppose you see for 2 to 3 days there is a difference. Like I explained Jaipur, suppose today it's trading at 500 rupees chana, for example. Carrying costs towards your Delhi, for example, your freights and all, it combines to be just around 50 rupees quintal. So your landed cost at Delhi is 5050, but at Delhi, Chennai is trading at 5100 rupees. So that is one of your arbitrage opportunity of encashing that 50 rupees margin, actually, the difference actually. So arbitrage is just, अब दो जगह डिफरेंस है, आप मतलब एक जगह खरीदा और दूसरी जगह आपने इंस्टेंटली बेच दिया, मतलब और कोई पोजीशन को आप होल्ड करके नहीं चल रहे हो उसमें। अब जैसे स्पॉट से फ्यूचर है, तो मतलब मंडी में मान लो अराइवल्स हो रही हैं, लूज मार्केट मेरा फॉर एग्जांपल, लूज मंडी फॉर एग्जांपल इट्स एट 4800 एंड माय फ्यूचर्स प्राइस इज एट 5100 फॉर एग्जांपल, माय ऑल एक्सपेंसेस ऑल कॉस्ट एक्चुअली इज समवेयर एट 250 रुपीज जस्ट फॉर एग्जांपल। तो 4800 से 250 रुपीज, अगेन इट्स 5050 रुपीज, एंड फ्यूचर्स पे since it's moving throughout the day and I get an opportunity, okay 5100 का आया, तुरंत जो 50 रुपीज का उधर आया, तो I sold it there. So this is what actually basically you are doing in arbitrage. It could be spot से future लगाना भी, कुछ लोग 20-30 रुपए का वहां पे मार्जिन या वो इनकैश करके रख लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह के फ्रेट रेट सब कैलकुलेट किया और स्टिल दे आर गेटिंग सम मार्जिन, तो अगेन दैट्स एन आर्बिट्रेज। हेजिंग इज अबाउट कि अगर आपका, आप मतलब हेजर्स, जनरली हेजिंग वो लोग करते हैं जिनको कमोडिटीज होल्ड करके रखनी होती हैं, जैसे कोई प्रोसेसर्स हो गए या एक्सपोर्टर्स वगैरह हो गए। सो दोज आर द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस हेजिंग, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म का, उनका जो पूरा साइकिल ही है वो 5 to 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के लिए उनको उस कमोडिटी में डील करना है इन एनी वेज। तो प्राइस अगर मतलब मान लो ऊपर जा रहा है जैसे किसी के लिए, तो उसके लिए फायदा है, बट अगर प्राइस अपोजिट चला गया तो उसके लिए लॉस हो गया ना पूरा। तो इसलिए उसको मिनिमाइज करने के लिए दे एक्चुअली हैज देयर पोजीशंस, दे मेक एन अपोजिट पोजीशन। सो और उसमें भी सम एक्चुअली सम कंपनीज विच आर एक्चुअली ट्रेडिंग दैट, सो थोड़ा सा पोजीशन, जैसे कि उनके पास में फिजिकली 5000 टन्स है, बट दे विल हेज ओनली 4000 टन्स, लाइक 1000 टन्स वो ओपन रख देंगे। लाइक उनका एक कैलकुलेटेड रिस्क रहता है कि ठीक है इतना ओपन है, फ्लैट लॉन्ग है, बाकी इतना हमने हेज करके रख रख के चला है कि इनकेस अगर कुछ भी प्राइस ऊपर नीचे आया तो दे कैन स्ट्रेट अवे तुरंत हेज कर देंगे बाकी का भी 1000 टन्स का पोजीशन एंड ऑल। तो हेजिंग इज बेसिकली आपके प्राइस मूवमेंट, आपके जो मतलब आपके फेवर अनफेवर मतलब फेवर में नहीं गया प्राइस मूवमेंट, तो उससे बचने के लिए जो आप पोजीशंस ले रहे हो वो हेजिंग है, तो आप वहां मिनिमाइज कर रहे हो प्राइस रिस्क को। आर्बिट्रेज इज अ वेरी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी आती है, तो इतने में वो अपना खेल खेल के चला जाता है, जो भी दो डिफरेंट मार्केट्स के बीच का डिफरेंस रहता है उसमें। Hope I answered your query, Tanya. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir.
Mhm. Anyone else having queries? Okay, then I guess no more questions. I'm not finding any question in the chat box, and neither anyone is speaking up. So I am assuming that there are no more questions ahead. So thank you all for taking out your time and attending this session. We keep on carrying out such sessions on some spread trading, other commodity trading concepts and all something. So you will be getting updates on our social media handles, and also you can keep following us, and then you can attend such sessions in future also. Thank you all for attending the session. So.